Lot, who started journey with him, आपको मालूम है लूत भी अब्राहम के साथ सफर शुरू किया। while they were traveling, there was some problem with the shepherds. और सफर करते वक्त चरवाहों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ। He told Lot, if you are choosing the right, I'll choose the left. You have the choice. अब्राहम ने लूत से कहा अगर तू बाएं जाएगा मैं दाएं को जाऊंगा, चुनने का वो आजादी लूत को दिया। Lot looked up and saw Sodom and Gomorrah is a blessed land at that time. लूत ने अपनी नजरें उठाई, उसने देखा सोदोम गोमोरा धन्य जगह है। He went there. और वहां चला गया। He built a house there. उधर घर बना लिया। He began to live and enjoy the blessings of that land, material blessings of that land. और उधर रहकर उधर के शारीरिक आशीषों का ऐश करने लगा। When angels came to visit Abraham, जब स्वर्गदूत उसके घर में अब्राहम के घर में आए, he didn't have a good house. He was staying in the tent. अब्राहम एक घर में नहीं रहता था, एक तंबू में रहता था। So therefore he requested the angels to sit under the tree. और इसलिए उसने स्वर्गदूतों से विनती की कि वो पेड़ के नीचे बैठें। He served them food at the tree. और पेड़ के नीचे उसने स्वर्गदूतों को भोजन खिलाया। But he went to Lot. He took them in and gave them a good shelter, good house and good food. और लेकिन लूत के पास जब गए वो अपने घर में ले गया, अच्छा खाना अच्छा मकान में ठहराया। Lut's daughters must be saying, our father is a wise father. लूत की बेटियां कहती होंगी हमारा पिता कितना ज्ञानी है। That old man Abraham is pitching his tent and removing it and pitching it and moving, keep on moving. वो बूढ़ा चाचा जो अब्राहम है बस इधर से उधर अपनी तंबुएं लेकर मारे मारे फिरता है। Our father is a wise man. He chose this Sodom and Gomorrah. हमारा पिता कितना समझदार है, उसने सोदोम और गोमोरा अच्छा चुना है। No more we have to turn to pitch our tent again and again. Now we are settled down here. अब हमें तंबू उठाकर कहीं घूमने की जरूरत नहीं, हम एक ही जगह अभी रहेंगे। They were enjoying. उधर ऐश कर रहे थे। Lot became a leader. लूत उधर का नेता बन गया। Because the leaders only sit at the gate to judge the people. और उधर नेता ही शहर के फाटक में बैठते थे लोगों का न्याय करने। So Lot was one among the leaders who used to sit at the gate. और लूत उनमें से एक अगुआ था, नेता था, इसलिए वो फाटक में बैठा। When the angel came, he received them. और जब स्वर्गदूत आया इसने उनको स्वीकार किया। Took them into his good house. और अपने अच्छे मकान में ले गया। Good them a good meal. और उनको अच्छा खाना खिलाया। But the middle of the night, angel said, you have to get out from here. रात के समय स्वर्गदूतों ने बोला तूने इधर शहर छोड़कर भागना है। In the morning, they were hesitating to go. और सुबह के समय जाने में हिचकिचा रहे थे। Then the angels dragged them. और फिर स्वर्गदूत उनको हाथ से पकड़कर घसीट के शहर के बाहर He लाए। said, run. और उनसे कहा भागो, Don't turn back. पीछे मुड़कर नहीं देखना। But his wife turned back and became a pillar of salt. लेकिन उसकी पत्नी पीछे मुड़कर देखी और नमक का खंबा बन गई। Later on, his daughters did the most dirty sin in the world. लेकिन उसके बाद उसकी बेटियों ने संसार का सबसे घृणित पाप किया। Committed adultery with their own father, Lot. अपने पिता लूत के साथ व्यभिचार किया। Now, in the book of Jude, it said, because Lot started with Abraham, it is counted righteousness for him. यहूदा में पढ़ते हैं अब्राहम के साथ लूत सफर शुरू किया इसलिए उसे धर्मी गिना गया। Our borrow imagination, come to heaven. और मैं आपसे विनती करता हूं आप स्वर्ग में जरा आए, उधर का नजारा देखें। Come with your imagination to heaven. और कल्पना में आप स्वर्ग में जरा मेरे साथ अभी आए। Noah sitting there with his wife and 3 sons and their wife, 8 people. नूह अपनी पत्नी और 3 बेटे और बहुओं के साथ 8 लोगों के साथ स्वर्ग में बैठा। On the other side, Lot alone. दूसरी तरफ में लूत अकेला। Where is Lot's wife and his 2 daughters? लूत की पत्नी और 2 बेटियां कहां? Not in heaven. स्वर्ग में नहीं है। Whose mistake? किसकी गलती? Lot chose the wrong choice. लूत ने गलत चुनाव किया। Material choice was a wrong choice for Lot. शारीरिक जो चुनाव लूत ने किया वो भयानक गलती थी। Abraham blessing is not material blessings. अब्राहम की आशीषें शारीरिक आशीषें नहीं हैं। Abraham blessing is a seed to the whole world. अब्राहम से मिला हुआ जो आशीष है वो सारे संसार के लिए वो बीज, वो वंश है। You understand? आपको समझ में आया? The blessing of Abraham is Christ. अब्राहम की जो आशीष हमें मिली है वो मसीह यीशु है। To these preachers who preach blessing of Abraham, you must tell them read the word correctly. और जो प्रचारक ऐसे ये आशीषों का प्रचार करते हैं उनसे कहना है कृपया वचन खोलकर ध्यान से पढ़े क्या लिखा है। In there itself it is written. और उसी वचन में स्पष्ट लिखा है
Blessing in when come to discover the blessing of Abraham is the seed. अब्राहम का जो आशीष है वो वंशों नहीं है, वंश है. There itself it is written that seed is Christ. और वहां पर लिखा है वो वंश मसीह यीशु है. Through Abraham, Gentiles receive the blessing that is Christ. अब्राहम के द्वारा अन्य जातियों ने जो आशीष पाई वो मसीह यीशु है. Therefore, Abraham also lived in the tent. इसलिए अब्राहम भी तंबुओं में वास किया. He looked for the city of God. वो परमेश्वर के नगर को देखता रहा. So therefore, children of God, don't be confused with the present day preachers. इसलिए प्यारे अजीजों, आज के आधुनिक प्रचारकों के प्रचार से गुमराह ना हो जाएं. I'll be taking this subject more clearly in the evening session. और शाम की सभा में मैं इस विषय को और खोल कर सिखाऊंगा. Material blessing. शारीरिक आशीषें. What is the difference between material blessing and spiritual blessing? शारीरिक आशीष और आत्मिक आशीष के बीच का फर्क क्या है? Because these days, out of 199% preachers preach about material blessing. क्योंकि आज की दुनिया में 100 में से 99% प्रचारक शारीरिक आशीषों का प्रचार करते हैं. America, Kerala, South India, all over the place. Norway, Australia, everywhere. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दुनिया भर, भारत में भी सब जगह इसी प्रचार हो रहा है शारीरिक आशीष का. I would like to put these scriptures before you in your fresh mind in the evening session. और शाम की सभा में यही वचन को दोबारा मैं आपके सामने रखूंगा. What is the great difference between material blessing and spiritual blessing? शारीरिक आशीष और आत्मिक आशीष के बीच में फर्क क्या है? Then you will understand the great danger in that. फिर आपको उसके अंदर के भयानक खतरे का समझ आएगा. Then you will understand how the churches are being exploited, destroyed by these false preachers. और फिर आपको मालूम चलेगा ये गलत प्रचारकों के द्वारा कलीसियाएं कैसे बर्बाद हो रही हैं. And I'll bring before you the word that usually take to preach and confuse people. और मैं फिर वो वचन भी आपके सामने लाऊंगा जिसका इस्तेमाल कर ये लोगों को गुमराह करते हैं. Now your rest time is coming, therefore I'm closing here. इसलिए अभी आपका क्लास का समाप्ति का समय आ रहा है, इसलिए मैं समाप्त कर रहा हूं. I give you rest time so that you meditate on the word. मैं आपको आराम का समय दे रहा हूं ताकि जो वचन सुना है उस पर मनन करें. Not just to keep it in the notebook, but to understand it. नोट्स लिखकर कॉपी में रखने के लिए नहीं, लेकिन आप उसको समझने के लिए. Today we studied, He must send us. आज सुबह हमने जो सीखा वो विषय, उसने हमें भेजना है. And we also studied Holy Spirit did not allow them to go to Asia and to another place. और हमने देखा किस प्रकार प्रभु के दासों को परमेश्वर की आत्मा ने एशिया में और दूसरे स्थान में जाने में रोका. And I told you what is the difference between Matthew 10 and Matthew 28. और मैंने सिखाया किस प्रकार मत्ती 10 और मत्ती 28 में जो फर्क है. Matthew 10, when Jesus sent them 2 by 2, it was for their physical healing and to preach them about the kingdom of God. और जब मत्ती 10 में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने चेलों को 2-2 कर भेजा, वो उनके शारीरिक चंगाई के लिए और आने वाले परमेश्वर के राज्य का प्रचार के विषय में था. But Matthew 28:10 is to make disciples. लेकिन मत्ती 28 का 10 मत्ती 28 का 18 से 20 में हम पढ़ते हैं चेले बनाने का जिम्मेवारी है. Everyone that is trained shall be like his master. हर कोई जो प्रशिक्षण पाएगा वो अपने गुरु के समान होगा. So we are making disciples. So हमारा काम है, हम जो कर रहे हैं वो चेले बनाने का काम है. And the Matthew 10 it is physical message. Matthew 28 is a spiritual message. मत्ती 10 का आज्ञा शारीरिक है और मत्ती 28 का जो आज्ञा है पूर्ण आत्मिक है. People are being prepared for physically to receive the spiritual thing. मत्ती 10 में उन्हें शारीरिक तौर पर तैयार किया जा रहा है ताकि आत्मिक आशीषों के लिए वो योग्य हो. He said, preach the kingdom of God at hand and made them physically ready to receive the spiritual thing. आने वाले परमेश्वर का राज्य का प्रचार करें ताकि शारीरिक तौर पर आने वाले आत्मिक राज्य के लिए वो तैयार हो जाएं. Just like when you give food, you wash the plates. जिस प्रकार आप खाना देने के पहले बर्तनों को धोते हैं. That's why Matthew 10. इसलिए मत्ती 10 है. But Matthew 28 is the real food. लेकिन मत्ती 28 असली भोजन है. You must understand that great difference. आपने वो बड़ा फर्क समझना है. As per Matthew 10, you just wash the plate and everything, keep ready for the food to be served. मत्ती 10 के अनुसार आप अपना प्लेट साफ करके रखें ताकि आने वाले दिनों में आपके सामने खाना परोसा जाएगा. But Matthew 28 onwards, the food, spiritual food. लेकिन मत्ती 28 में उस तैयार किए प्लेट में वो आत्मिक भोजन परोसा गया.
So that we will study in detail. और इसी विषय को और गहराई में हम सीखेंगे. Now we'll close our eyes in prayer. The servant of God will come and close the meeting. अब प्रभु के दास आगे आएंगे, प्रार्थना करके सभा को समाप्त करेंगे. धन्यवाद देते हैं आपके बड़े अनुग्रह के लिए. प्रभु, आपने हमें ये सौभाग्य दिया जो तेरा सही वचन, प्रभु, जो दुनिया में और कहीं आसानी से नहीं मिलता है. खुदावन, तूने हमें उसको अच्छे से समझाया, सिखाया. धन्यवाद देते हैं खुदावन उस आत्मिक भोजन के लिए. पिता, तेरे इस वचन के अनुसार तेरी उस आज्ञा को मानते हुए खुदावन तू हमें से प्रत्येक को कृपा दे, हम आगे जीवन में बढ़ते जाएं. खुदावन, तेरे हाथ में आगे के समय को सौंपते. प्रभु, आप हम सब की अगुवाई करें. धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम.